Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start with chapter 7, Sufi Bhakti tradition. I hope you have remembered that we have completed this chapter in the previous classes. Today we will try to understand the main important topics. Like if you will read this whole chapter, then you will find the various important points which is very important for your exam term 1. You have to prepare yourself according to that. The factual question should be in your mind. The paragraph should be in your mind that which paragraph is important and how we pick the question in this paragraph. Okay. Here I want to inform you that कि सूफी भक्ति ट्रेडिशंस के कुछ पैराग्राफ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली सूफीज़म से और भक्ति में नैनार एंड अलवार सेंट्स से. तो अगर पूरा फ्रेम करें मैप का भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का, तो पहले हम भक्ति को फ्रेम करते हैं. भक्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति को हम कैटेगराइज करेंगे 2 टाइप ऑफ भक्ति, विद एट्रीब्यूट एंड विदाउट एट्रीब्यूट. विद एट्रीब्यूट एंड without attribute. Without any hesitation, these points have in your mind that with attribute it means sagun, and without attribute it means nirgun. Nirgun. Okay? When we discuss with attribute, जब हम with attribute की बात करेंगे, तो with attribute it means here the God has some shape and size. भगवान का कोई आकार है, कोई स्वरूप है, कोई. Okay, so my dear, with attribute, without attribute, so there is no doubt in your mind that with attribute, those followers, those people who believe in the God, their features, their shape, their size, I mean to say that directly I can say that कि idol worship, मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग, भगवान के स्वरूप में विश्वास करने वाले लोग सगुण भक्ति में आ गए. निर्गुण भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट, ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि भगवान गॉड क्या है, omnipotent, omnipresent, omniscient, both they these points believe both with attribute, without attribute. But here without attributes, people, followers believe that there is no shape and size of God. भगवान का कोई भी आकार नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई भी एक निश्चित तरीका, एक रूप नहीं है. I hope you have remembered in my class where I discussed that he what said about God. शंकराचार्य ने क्या कहा था भगवान के बारे में. शंकराचार्य he preached that we are unable to explain that what is the shape of God. But when you will ask me a question that so how can you believe the existence of God, you can say neti. What is neti? What is the meaning of neti? शंकराचार्य explained that कि भगवान कैसा है ये हम नहीं कह सकते. भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, हम कह सकते हैं. भगवान पेड़ की तरह है, भगवान इंसान की तरह है, भगवान इस पशु की तरह है, भगवान ऐसा है. लेकिन भगवान कैसा है हम उसे नहीं कह सकते, हम उसे एक सूत्र में नहीं मान सकते. इसके अलावा विथ एट्रीब्यूट को वो
जो विदाउट एट्रीब्यूट वाले लोग हैं वो विद एट्रीब्यूट को काउंटर करते हैं, कहते हैं कि मैन हैज नो राइट टू व्हाट, एक बाउंड्री बनाना भगवान की। अगर हम भगवान को सीमित कर दें एक रूप में तो ये भगवान की प्रभुसत्ता, भगवान की सत्ता के अगेंस्ट काम होगा। तो विद एट्रीब्यूट जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये कंप्लेन थी इनकी विदाउट एट्रीब्यूट की विद एट्रीब्यूट के साथ, और विद एट्रीब्यूट की कंप्लेन थी विदाउट एट्रीब्यूट से। यदि आपके पास कोई शेप एंड साइज नहीं है गॉड की, तो आप किस तरीके से गॉड से इंटरेक्ट होंगे? कंसंट्रेशन के लिए, गॉड से इंटरेक्शंस के लिए एक मीडियम होना चाहिए जिसको देख के कंसंट्रेट हो। तो दैट टाइप ऑफ थॉट्स with attribute and without attribute, they believe that, you know, if you will categorize, if you will give the shape and size that God is that suppose कोई भी एक मूर्ति को ले, मूर्ति को बोले ये भगवान है, तो भगवान को हमने सीमित कर दिया, एक मूर्ति में ही भगवान को डाल दिया। अब भगवान सिर्फ मूर्ति में ही दिखेंगे। विदाउट एट्रीब्यूट वाले कहते हैं ये गलत है, भगवान को हम किसी शेप एंड साइज में नहीं बांट सकते। ओके, विद एट्रीब्यूट में कवियों के नाम, I mean to say that main deities, main followers, which we have it, even I will give you so many examples, but as you know that when you read your chapters, then only 2 or 3 who believe in with attribute. With attribute, Mirabai. Okay, Sudas. Here I want to tell you that Surdas is completely blind. You can ask me that how can you say that he Surdas believe in the same size of God? How can you say that he believe in the what? The Sagun Bhakti? Dear Sur Saravali, that is the very finest literature. It was written by Surdas, where he explained the childhood time period of the Lord Krishna. When you will read, then you can easily understand that why I am saying that he believe in the Sagun Bhakti. सूरदास जी ने अंधे होने के बाद भी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, उसे कोई भी बरबस कह सकता है कि ऐसी कल्पना करना, ऐसा सोचना भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जिस तरीके से उन्होंने किया। ओके, इनके नाम मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, etc. And without attribute, here the name. Here one name also you can include, Shankardev. But the Shankardev concept is totally different. Why? Because Shankardev believe in Sagun Bhakti, but he don't believe in the idol worship. Okay? He don't worship in idol worship, but he believe in Sagun Bhakti. तो हम शंकरदेव को इधर बाहर की तरफ कर देते हैं। याद रखिएगा, शंकरदेव who was prominent saint of North East India, it means Assam. It means Assam. अशोम लिखिए, अभी तो नाम चेंज हो चुका है, अशोम। ओके, दे बिलीव व्हाट? द सगुन भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो दो चीजें आपको, अब ये तो कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई वांट टू टेल यू, दैट इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट, धर्म और धर्म से संबंधित मान्यताओं को यदि हम एक दूसरे से समन्वित कर दें, एक वर्ग की मान्यताएं दूसरे वर्ग की मान्यताओं के साथ जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज इंटीग्रिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड was the sociologist. When he observed Indian society, he found that the society categorized in two parts on the basis of the worship of the God. The lower class of the people, their main deity, their main God is different, and the upper class people, their main God is different.
But he became very astonished having seen that the both upper class and lower class, without any hesitation, they accepted each other's God. That is called great traditions and little traditions. He given the hypothesis, he given the theory that the great traditions and little traditions. I think there is no need to explain about the great tradition and little tradition because I various time discussed this topic in my class, in my video also. Sorry to say that कि बहुत कम आप क्लास में इसको देखते हैं. You should watch this video. It is very fruitful for you. आप लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंट होगा. फिलहाल तो ये चीजें ग्रेट ट्रेडिशन रिलेटेड. अब इसके बाद आइए मैं आपको कल के आर्टिकल 3.2 के पेपर पे चलता हूं. ओके, तो 3.2 पेपर देखते हैं. रिवीजन टेस्ट. किसे समझ आई? भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. आर्टिकल 3 आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशंस है. कल के पेपर में, क्लास पेपर में, रिवीजन टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द भक्ति ट्रेडिशन विच फेवर्ड द विडोज रीमैरिज. व्हेन यू विल रीड द वीर शैव और लिंगायत, व्हेन यू विल minutely observe about the teaching of the Lingayat, then you can easily found that what they believe. They believe that the widow remarries. उन्होंने widow remarries की बात की. तो पहला आंसर इसका होगा लिंगायत. फर्स्ट का आंसर होगा लिंगायत. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द लिंगायत. लिंगायत कौन थे? जैसे ही आप भक्ति सूफी ट्रेडिशंस खोलेंगे, टॉपिक 1, 2 खोलेंगे तो आपको शैव, नयनार एंड वैष्णव, हलवार 2 कैटेगरीज मिलेंगी भक्तों की. इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भक्ति, अलवार्स एंड नयनार्स. हु बिलीव इन लॉर्ड विष्णु दे कॉल्ड अलवार्स, एंड हु बिलीव इन लॉर्ड शिवा दे कॉल्ड नयनार्स. अलवार्स बिलीव इन विष्णु, लॉर्ड विष्णु. नयनार्स बिलीव इन लॉर्ड शिवा. The number of the followers, main deity, Alwars, they were 12. Alwar saints, the number of Alwar saints, that is 12. Okay, Alwar saints कितने थे? 12. और जब नैनार सेंट्स की बात करेंगे, how many number of the नैनार सेंट्स? 63. नैनार सेंट, number of the नैनार सेंट, they were 63. They did very hard work to explain these सेक्ट, अलवार्स एंड नैनार्स. दोनों को उन्होंने काफी इस पे काम किया. अलवार्स एंड नैनार्स, स्पेशली वी फोकस द लिंगायत. नैनार्स categorized in the 4 sections: पाशुपत, लिंगायत, कपालिक एंड वीरशैव. तो ओके, वीरशैव और लिंगायत इज सेम. the main stream of the Nainars, they were Pasupat. Lakulis was the founder of Pasupat sect of the Nainars. It was very famous. Then after Kapalik, Kalamukh, and 4th Lingayat or Veershaiva. So Lingayat or Veershaiva, it was founded by Basvanna. Sometimes you found the different name Jangam. Okay? वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इस संबंध में 2 बात. वीरशैव और लिंगायत. वीरशैव बसवन्ना, इसे जंगम भी कहते हैं. तो लिंगायत या वीरशैव या जंगम, आप जब भी ये नाम आए तो जैसे ही नाम आता है एग्जाम में, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जंगम आते ही आपको समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है. वीरशैव के बारे में बात कर रहा है, लिंगायत के बारे में बात कर रहा है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा प्रश्न क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, which I want to inform you when you will in exam
exam hall pressure is different. When you will in classroom pressure is different. So please be aware when you will read the question. जब आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्नों को भली प्रकार से पढ़ें, उसमें जरा सी भी ऐसा ना हो कि घबराहट में, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो तमाम सारे आप में घबराहट होती है, आप जहाँ नो लिखा होता है वहाँ नो नहीं पढ़ते, तो आप स्टेटमेंट को ठीक से नहीं पढ़ते, घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, खास तौर से असर्शन के क्वेश्चन, खास तौर से करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन, क्योंकि जरा सा माइन्यूटली आप गलत करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ओके, द ऑप्शन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, अर्ली भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय अलवार्स नैनार्स. The Alvars were devotees of Shakti. The Nainars were devotees of Vishnu. The statement is three. First statement, early bhakti movements were led by Alvar and Nainars. Second statement, the Alvars were devotees of Shakti. Shakti, it means goddess Durga. Okay. Third point, the Nainars were devotees of Vishnu. Okay. अब जो मैंने कहा वो ध्यान दीजिए. What I tell you, I taught you in your previous classes, in my this classes also, the followers of Shiva, they called Nainar. The statement 3 is completely what? Wrong. Galat hai na? Incorrect. Second, Alvars were devotee of Shakti. That is also wrong. Alvars, they were what? Follow Lord Vishnu. And यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट. ओनली आंसर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज देयर ए टेकिंग द विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन स्कल्पचर एंड टेक्स्ट? 6th to 18th century, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, 18th to 21st century. ऑप्शन सी, 8th to 18th century. Option D, 7th to 16th century. Okay, this question is also given in your book. When you will read your book minutely, then you can easily discuss this point. This is your paper. I hope ये पेपर आप सभी को मिले होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसका. मैं अगेन इसको एक बार रीड कर देता हूँ. During which period was there a striking visibility of wide range of God and goddess in the sculpture and text? 6th to 18th century, 18th to 21st century, 8th to 18th century, 7th to 16th century. Without any hesitation, the heading of your chapter, Bhakti and Sufi traditions from 8th to 18th century. It is given in your book. तो आप बिना हेजिटेशन के इसका आंसर 8th to 18th century लगा सकते हैं. अगला आंसर है आपका क्वेश्चन है 4, वेयर डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम? अर्ली भक्ति मूवमेंट कहाँ पहली बार प्रकाश में आया? टू वेरियस टाइम आल्सो दिस क्वेश्चन इज डिस्कस्ड बाय मी इन योर क्लास, दैट भक्ति उपजी द्रविड़ी लाई रामानंद. तो भक्ति उपजी द्रविणी. द्रविड़ किसे कहते हैं? द्रविडियन कल्चर, इट मीन साउदर्न कल्चर. भक्ति कहाँ ओरिजिनेट हुई? फर्स्ट टाइम भक्ति ओरिजिनेट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ऑप्शन इज साउदर्न पार्ट इज गिवन हियर. ओके, साउथ इंडिया. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कॉमन टू बोथ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट? आइडेंटिफाई which of the following aspect is not common to both Bhakti movement and Sufi movement? Option A, personal love for God, that is common. Option B, worship of idols. Option C, mysticism. And option D, visit to holy shrine. My dear, answer is B, worship of idol. Why? Because there is no concept of idol worship in Islam. Sufi, they directly belong to Islam. Okay, इस्लाम से संबंधित थे, इसलिए वो
क्या करते थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो मूर्ति पूजाओं में विश्वास नहीं करते थे। तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने के कारण क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में वो आपका ऑप्शंस क्लियर बता देगा कि कौन सही है। तो इस्लाम इडोल वर्शिप नहीं करते थे, दैट इज नॉट कॉमन इन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग दीज रोट द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती टाइटल्ड एज ए मुनीज अल अरवाह? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मुमताज एंड ऑप्शन डी जहांगीर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को टाइटल मुनीस अल अरवाह की उपाधि किसने दिया? करेक्ट आंसर इज आंसर डी। ओके, जहां आला साहिब, जहां आला साहिब शी वॉज डॉटर ऑफ शाहजहां, शी गिवन दिस टाइटल, उन्होंने टाइटल दिया। ये जहांरा साहिब का नाम कहाँ आया है? अगर आप बुक को पढ़ें तो जब आप मुगल क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे तो मुगल क्रॉनिकल्स और पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट्स, इन दोनों चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इन चैप्टर में स्पेशली मुगल क्रॉनिकल्स वाले चैप्टर से जहांरा साहिब का नाम आएगा। एक दारा सिको और एक शादी का उल्लेख है, एक मैरिज पार्टी डिस्कस की गई है कि कितने पैसे खर्च किए गए, जहांरा साहब को खर्च पॉकेट मनी कहाँ से मिलती थी, उन चीज़ों की बात की है। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो इनके नाम आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ दीज इज एन द इंपीरियल ऑर्डर? फरमान, सरियाज, फरमान, सरिया, सलात एंड हज। विच ऑफ दीज इज एन इंपीरियल ऑर्डर? ओके, फरमान, व्हाट इज फरमान? फरमान दैट वाज जस्ट लाइक ए ऑर्डर, ठीक है, एक तरीके का क्या था, ये आदेश होते थे फरमान। और बाकी 3 जो है वो क्या है, इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, उन 5 पिलर्स में उनमें से 2 इस्लाम के 5 पिलर्स में और एक इस्लाम से संबंधित, नमाज, जकात, रोजा, हज, कलमा और सलात एक तरह का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8, अलवार्स एंड नैनार्स वर द भक्त ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर इज तमिलनाडु। अलवार्स एंड नैनार्स, they were originate first time in Tamil Nadu and gradually they widely expanded in whole its subcontinent. Okay, पूरे भारत में ये संत फैल गए, लेकिन शुरुआत इनकी कहाँ से हुई? इन्हीं जगहों से हुई। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विठ्ठला was the principal deity in Vitthal temple. Vithala was known as the incarnation of Lord Brahma, option A, Vishnu, option B, Shiva, option 3, and Ganesh, option D. What is the right answer? Vitthal is incarnation of which god? Which I told you. Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Ganesh, and Lord Brahma. Right answer is Lord Vishnu. Question number 10. The major anthology composed by Alvars was, please read minutely. Alvars, 2 तरीके के ग्रंथों की बात की गई। पहला जो अलवार्स ने लिखा वो क्या थे? नलैयार दिव्य प्रबंधन। दूसरा जो नैनारों ने लिखे, मैंने उसके बारे में आपसे बात किया था, देवरम, दीज टाइप ऑफ। तो 2 बुक है, आपको पहले उसको क्या करना है, एक कैटेगराइज कर देना। आपको 2 कॉलम बनानी है, नैनार्स एंड अलवार्स। नैनार्स के सारे फीचर्स, सारे पॉइंट, सारे प्रीचिंग एक साथ रख लीजिए। नैनार्स में एक अलग पॉइंट, सब पॉइंट बना करके उसमें आप लिंगायत के बारे में डिटेल कर लीजिए, क्या प्रीचिंग है। और अलवार्स की एक पूरी डिटेल आप देखेंगे
कि एक तरफ हमें आंडाल दिखती हैं, विमेन डिवोटी, दूसरी तरफ हमें करिकल अम्यार दिखती है। एक तरफ हमें लव एंड अफेक्शंस दिखता है, दूसरी तरफ हमें एक्सट्रीम सेक्टिज्म दिखता है। एक तरफ हमें हाइम्स दिखते हैं जो मोस्टली समाज के सोशल वर्ग में थे, और एक तरफ हमें उन लोगों की धार्मिक भावनाएं दिखती हैं जो कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव कंप्लीटेड। वी विल कंटिन्यू दिस पेपर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।